شروع کریں میم؟ شروع کر رہے ہیں. آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہمارا ماڈل پیپر پہلا تھا جس میں بہت سارے لوگوں اس کو اوپن بھی کیا گیا تھا اور آؤٹ سائڈر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیے اور ماشاء اللہ سب پرفارمنس آپ لوگوں کے بہت اچھے رہے. اور ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں. کچھ پورشن میں کرا دیتا ہوں, کچھ میم کرائیں گی. تو ہمارا پہلا کوشچن جو پوچھا گیا تھا آپ سے, نویں گروہ کے مطابق عناصر میں شمار ہیں. عناصر کے تعلق سے بہت سارے گروہ تھے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 14 گروہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو سب کے اپنے اپنے اقوال تھے. کسی نے صرف ایک کو عنصر مانا, کسی نے 2 کو عناصر مانا, کسی نے 3 کو مانا, کسی نے 4 کو مانا. تو اس کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ جو پوچھتا ہے گروہ 9واں 10واں 11واں, اس کے علاوہ جو ہے 12واں گروہ اور 14واں گروہ, عناصر اربع, عناصر کثیرہ اور 3 عناصر. یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس میں سے آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں. یہاں سے پوچھا گیا تھا 9ویں گروہ کے مطابق عناصر میں شمار ہے. آپ سے آپشن دیا گیا تھا نار, ہوا اور ارض. اس کے بعد ہوا اور ماں دیا گیا تھا, روغن ملے, اور گندھک دیا گیا تھا. نار, ماں, ہوا, ارض دیا گیا تھا. تو 9واں گروہ کا جو وہ تھا ماننا تھا, وہ 3 کو عناصر مانتے تھے. اس میں 3 میں نار, ہوا اور ارض کو, یعنی آگ, ہوا اور مٹی کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. جو 10واں گروہ تھا وہ ہوا, مٹی اور پانی کو مانتا تھا. ٹھیک ہے. اور جو 13واں گروہ تھا یہ مانتا تھا کہ روغن ملے اور گندھک. یہ 3 عناصر کے ماننے والے تھے جو 9, 10 اور 11واں گروہ تھا. تینوں کے تینوں 3 عناصر کو مانتے تھے, جس میں 9واں گروہ ہوا, مٹی اور آگ کو مانتا تھا. تو سوال یہاں پوچھا گیا تھا 9واں گروہ کس کو عناصر مانتا تھا, کس کو عناصر میں شمار کیا کرتا تھا. تو وہ آپشن آپ کا جو تھا پہلا ہو گیا, نار, ہوا اور ارض. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. اگلا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے سفرا کے تعلق سے کہ سفرا, اس میں اسٹیٹمنٹ کے طور پہ آپ سے سوال پوچھا گیا تھا. تھوڑا سا کوشچن ٹھیک ہے کلیئر ہو رہا ہے. پہلا اسٹیٹمنٹ دیا سفرا مہیا وہ سفرا ہے جس میں رقیق بلغم مل جاتے ہیں. دوسرا اسٹیٹمنٹ دیا ہے سفرا مرہ وہ سفرا ہے جس میں غریب بلغم مل جاتے ہیں. دیکھو سفرا مہیا اس کو کہتے ہیں, سفرا غیر طبعی کی اقسام ہوتی ہے جو اس میں ہم 4 قسمیں پڑھتے ہیں غیر طبعی کی, سفرا مہیا, سفرا مرہ, محترقہ اور گلاسی وغیرہ. ٹھیک ہے. تو جو سفرا مہیا ہوتا ہے اس میں جو ہے سفرا کے ساتھ اگر غلیظ بلغم مل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سفرا مہیا, اور رقیق بلغم مل جائے تو سفرا مرہ کہلاتا ہے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے, رقیق میرے آتا ہے اور مرہ میرے آتا ہے. اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں, بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو آج اسٹیٹمنٹ جو دیا تھا وہ دونوں اپوزٹ کی ہو گئے, یعنی جو مہیا کے لیے کہا گیا رقیق, جبکہ مہیا میں کیا ہوتا ہے غلیظ بلغم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرہ کے لیے کہا گیا غلیظ, جبکہ مرہ میں کیا ہوتا ہے رقیق بلغم ملتا ہے. تو دونوں اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے, مرہ رے اور رقیق رے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے, ایک آتا ہے آپ سے خدمت مودیہ اور خدمت مہیا. دیکھیے ایک دم آسان سا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. مودیہ کس کو کہتے ہیں, مہیا کس کو کہتے ہیں. مہیا وہ ہوتا ہے, مہیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتظام کرنا, مہیا کرانا. تو جو عضو رئیس ہوتے ہیں اس کے فعل سے پہلے جو کام کریں, یعنی عضو رئیس کو جو فعل کرنے کے لیے آمادہ کریں, اس کے فعل میں سپورٹ کریں شروعات میں پہلے, وہ پھر عضو رئیس اپنا فعل کرے. تو ان کو کہتے ہیں, ان اعضاء کو کہتے ہیں ہم عضو مہیا, یا جو خدمت وہ انجام دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں خدمت مہیا. اور عضو رئیس کے بعد جو فعل انجام ہوتا ہے, یعنی جیسے دماغ ہے, دماغ نے کوئی چیز جو میسج بھیجا کسی اعضاء کو تو ہو جائے گا خدمت مودیہ. ٹھیک ہے. یعنی بعد کا جو عضو رئیس سے قبل ہو اس کو کہیں گے مہیا, اور عضو رئیس کے بعد جو ہو اسے کہیں گے خدمت مودیہ. تو یہاں سے آپشن میں کچھ بھی کوشچن بنا کے دیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں دیا تھا مرید جو, یعنی میرا کیوا جو ہوتا ہے قلب کی کون سی خدمت انجام دیتا ہے. میرا کیوا کیا کرتا ہے, قلب عضو رئیس ہے, میرا کیوا کیا کرتا ہے, اس کو قلب کو خون مہیا کراتا ہے. یعنی قلب جو ہے وینا کیوا سے سپیریئر انفیریئر وینا کیوا سے بلڈ کو کلیکٹ کرتا ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے, عضو رئیس کا کام ہے جو قلب ہے وہ دوران خون کو بنانا, یعنی پورے جسم میں خون کو پہنچانا. لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے قلب کو جو مدد کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سپیریئر وینا کیوا یا انفیریئر وینا کیوا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کام کیا ہو گیا, خدمت مہیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر یہ بات کرتا اگر پلمونری آرٹری سوری اس کی ایورٹا کی, تو ایورٹا کیا ہوتا ہے یہاں پہ خدمت مودیہ ہو جاتا ہے. قلب کے لیے ایورٹا خدمت مودیہ ہو جائے گا, اور وینا کیوا کیا ہو جائے گا خدمت مہیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن.
क्या आपका था अद्विया और उनके जुज़े मुस्तमला का सही मिलान क्या है? आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि किस अद्विया का कौन सा जुज़ इस्तेमाल किया जाता है, किसका तुक्म है, किसी का वर्ग है, किसी का कुछ है, कभी-कभी मुसल्लम पौधा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आपको इस हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो इसमें पूछा गया था अकील मलिक, जिसको हम लोग नाखूना कहते हैं, इरसा, उसके बाद बादियान, अभाल, ये सब एकदम बिल्कुल कॉमन और आसान सी दवा थी, जिसका मिलान करना था आपको। तो अकील मलिक में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो फलियाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से इरसा जो होता है, इरसा की जड़ इस्तेमाल की जाती है, बहुत कॉमन दवा को भी इस्तेमाल किया जाता है। बादियान सौंफ तुख्म होता है, ठीक है? उसके बाद जो अभाल होता है वो फल इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग वगैरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है असबाब के बारे में, असबाब मातिया, असबाब सौरिया, असबाब फाइलिया, असबाब तमामिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई तभी असबाब सौरिया कौन है, या असबाब मातिया में कौन आते हैं, असबाब फाइलिया कौन आते हैं, या इनके कभी कभी आपसे जो है इसकी तारीफ पूछी जाती है कि असबाब मातिया किसको कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ असबाब मातिया का था, बहुत डिटेल में सब बताया था कि असबाब मातिया वो होते हैं, वो अशिया होते हैं जिनमें सेहत या मर्ज कायम होते हैं, और असबाब फाइया वो होते हैं जो असरअंदाज होकर इंसान के सेहत को कायम कर रखते हैं। इसी तरीके से असबाब सौरिया होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मिजाज कुआ वगैरह, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं असबाब तमामिया रगाइबा, इसमें अफ़ाल बदन इंसानी है, जो बदन के इंसान के अफ़ाल होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें असबाब मातिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है उसके याद करने का तरीका है जो अलिफ से है, ठीक है? अरकान, अखलाक, आदा, अरवा, ठीक है? अरकान, मिजाज, अखलाक, जो जितने अलिफ वाले हैं वो असबाब मातिया हैं, ठीक? इसमें आपको मिलान करना था असबाब मातिया कौन है। तो पहला था आपका अफाल दिया, असबाब सौरिया दिया हुआ, तो असबाब सौरिया में हम लोग मिजाज और हुआ पढ़ते हैं। उसके बाद दिया असबाब मातिया, असबाब मातिया में आपका आता है अरकान, अखलाक, आता अरवा। उसके बाद इसमें अफाल नहीं आता, बस इतना याद रखिएगा, अलिफ से जितने हैं सारे के सारे असबाब मातिया हैं एक्सेप्ट अफाल वाला, ठीक है? उसके बाद असबाब फाइलिया है, असबाब फाइलिया में हम लोग दो पढ़ते हैं, असबाब सित्ता जरूरिया गैर जरूरिया। उसके बाद असबाब तमामिया, असबाब तमामिया इसी को हम लोग असबाब गाइबा कहते हैं, जिसमें अफाल आते हैं, ठीक है? यही तमामिया में अफाल आता है, बल्कि सारे अलिफ वाले असबाब मातिया होते हैं, ठीक है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, ठीक है? असर्शन रीजन में हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि बिल्कुल उसी तरीके से सवाल भी है कि असर्शन रीजन में हमको ये जरूरी होता है देखना, असर्शन सही होता है, रीजन सही है, उसके अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं कि जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हो रीजन, यानी जो रीजन दिया होगा उसी के रिगार्डिंग दिया हो, बिल्कुल जो बात असर्शन में कही गई है उसको जस्टिफाई कर रहा हो, तब हम असर्शन रीजन को सही मानते हुए एक्सप्लेनेशन को करेक्ट मानते हैं, यानी पहला ऑप्शन तभी सही करते हैं। अगर असर्शन सही दिया हुआ है, रीजन भी सही दिया, लेकिन उसका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं बन रहा, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सेशन में जो कही गई बात है उसको वादे नहीं कर पा रहा है रीजन, तो फिर रीजन का एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन जो होता है अमूमन की असर्शन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, वो ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं। तो आप लोग असर्शन रीजन में करते वक्त ये इस क्वेश्चन को लोग रिपोर्ट भी किए थे, तो इसमें आप लोगों को इसका ध्यान रखना होता है कि कह क्या रहा है और उसके ताल्लुक से पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ सेशन में जो बात कही जा रही थी वो कहा जा रहा है अनासिर की तारीफ में बसीत की कैद लगाई जाती है। अनासिर के लिए कहा क्या है, उसकी तारीफ हम लोग पढ़ते ही हैं कि वो बसी को मुफरत मानते हैं जो बदन इंसानी के लिए अज्जा अव्वलिया है, ठीक है? और ऐसे मादे जो मुनकसिम नहीं होते, मतलब ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अरकान जिस तरह हवा है और सारी चीजें, अब तो वाटर को अलग किया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन वो अपने यूनानी नुक्ते नजर से ऐसा था और कानूनी को कहा गया था जो बसीत हो, यानी मुफरत हो, गैर मुरक्कब हो, जिनको मुनकसिम नहीं किया जा सकता। तो ये अनासिर में असर्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, और इसका रीजन बता रहा है कि उनका ऐसे मादों में तकसीम करना मुमकिन नहीं जिनकी सूरतें और माहियतें मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल इस बात की, इसलिए उनको बसीत कहा गया था, सिंपल कहा गया था, ठीक है? तो असर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
69 क्वेश्चन है, सेशन है कि ज़ेरी आतों में खुसूसन इमाम मुस्तकीम में ताफुन ज्यादा होता है। रीजन में दे रहा है कि ज़ेरी आतों पर सफरा गिरता है जो ताफुन पैदा करता है। इसमें देखो ज़ेरी आतों में क्या होता है कि इमाम मुस्तकीम जिसको हम लोग कहते हैं उसमें ताफुन ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ज़ेरी आतों में जो है बालाई आतों के मुकाबले ताफुन का खतरा ज्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ज़ेरी आतों में जो होता है वहां पे सफरा नहीं पहुंच पाता, बालाई आतों में सफरा गिरता है, ड्यूटम में आके सफरा गिरता है। और सफरा क्या होता है, दामे ताफुन होता है, सफरा तफसील इमा करता है, इसलिए वहां ताफुन नहीं हो पाता। तो रीजन जो दिया हुआ वो ज़ेरी आतों में सफरा गिरता है, जबकि ज़ेरी आतों में नहीं बल्कि बालाई आतों में सफरा गिरता है। तो रीजन गलत हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, रूह का इतलाक होता है। रूह हम कब कहते हैं? जैसे जो हवा हम जब लेते हैं ऑक्सीजन हवा से, तो उसको रूह कब बोला जाएगा? तो जब वो कब ये ऑप्शन में दिया होगा नाक, जब वो नाक में दाखिल हो जाए तो, या फेफड़ों में पहुंच जाए तो, जब रूह उसको उस वक्त कहा जाता है जब नसीम जो होता है खून में शामिल हो जाए, यानी फेफड़ से फ्यूजन होकर ब्लड सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व होता है और जुज़े बदन बने, तब उसको हम रूह कहते हैं। ठीक है, उससे पहले वो रूह नहीं होता है। तो रूह का इतलाक तभी होता है जब वो जुज़े बदन बने, नसीम में खून में शामिल हो जाए। ठीक है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, जब नसीम खून में शामिल होता है तो उसे रूह कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें कौन वह खमसा ज़ाहिरा के ताबे नहीं है? इसमें देखिए, हम जो पढ़ते हैं खवासे खमसा ज़ाहिरा, खवासे खमसा ज़ाहिरा और हवासे खमसा बातिना, ये क्या होते हैं? ख्वाह खमसा के ताबे होते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया आपसे इसमें कि कौन ख्वाह खमसा ज़ाहिरा के ताबे हैं। तो आप हवाए खमसा में कौन कौन सा पढ़ते हैं? पांचों चीजें जो ज़ाहिरा में पढ़ते हैं, हम लोग ज़ाहिरा की बात कर रहे हैं, तो इसमें शामा, ठीक है, लामसा, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, बासरा। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो ये लामसा जो होता है और शामा हम लोग इसमें होते, ये ज़ाहिरा के ताबे होता है। जाज़बा, दाफिया और हाफिजा इसके ताबे नहीं होते। इसमें बी सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है कि इस्तिस्का, हुजाल और बर्फ किस तरह से, जैसे किस तरह के हमारे अफआल में कमी आती है, किस तरह की कुव्वतों में कमी आने के नतीजे में ये चीजें पैदा होती हैं। तो दिया हुआ है कुव्वत इंजज़ाब की खराबी में हो जाए तो क्या होगा, कुव्वत मुलस्सका की खराबी हो जाए तो क्या होगा, और उसके बाद दिया हुआ है कुव्वत मुशब्बहा की खराबी। आप पढ़ते हैं कुव्वत मुहस्सला, कुव्वत मुलस्सका और कुव्वत मुशब्बहा। कुव्वत मुहस्सला को कहते हैं रिसेप्शन पावर, यानी जौहर ग़िज़ाई को आधा तक पहुंचाने वाली कुव्वत क्या कहलाती है? मुहस्सिला। मुहस्सिला तहसील से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह होता है मुलस्सका। मुलस्सका जो करती है ग़िज़ा को आधा के साथ चिपकाने का काम करती है, इसाक से बना हुआ है, इसाक का मतलब चिपकाना। तो ऐसी कुव्वतें जो चिपकाने का काम करती है ग़िज़ा को आधा के साथ, उनको कहते हैं कुव्वत मुलस्सका। और मुशब्बहा, ये मुशाबह तशबीह से बना हुआ है, यानी ग़िज़ा को अज़ू के मुशाबे जो बना दे, उन कुव्वतों को कहते हैं कुव्वत मुशब्बहा। अब होता क्या है कि अगर कुव्वत गाज़िया के फेल में इल्साक में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं, तो इस्तिस्का हो जाएगा। इसी तरह कुव्वत गाज़िया के फेल मुशाबे में अगर खलल पैदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिस तरह आज़ा का शक्ल है अज़ू के मुशाबे नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बर्स वगैरह, मर्स, बहक वगैरह इसी में हो जाता है, क्योंकि जो आज़ा होते हैं, मान लीजिए वो सफेद ब्राउन कलर का है और वहाँ पे जो है उसको शक्ल में तब्दील नहीं कर पा रहा है कुव्वत मुशब्बहा, तो इस वजह से वहाँ सफेदी आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर इंतजाम में ही फेल आ जाए तो क्या होगा, गुजाल हो जाएगा, आधा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां तक। ठीक, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ट्रॉफी की आप होती है ना, मैकेनिज्म में ये होता है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो, काफी हो जाता है, डिस्यूज हो जाता है, तो काफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूरुल अतिब्बा अबुल कासिम फरिश्ता की तसनीफ करदा किताब है। दूसरा बयान दिया हुआ है किताबुल अख्तियारात कासमी के नाम से मशहूर है। तो ये दस्तूरुल अतिब्बा को जो है, ये उसको लिखा था अबुल कासिम फरिश्ता ने। ठीक है, और ये फेमस है अख्तियारात कासमी के नाम से। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें बयान दोनों सही हैं, इसमें कोई नहीं। अबुल कासिम फरिश्ता के बारे में कहा जाता है ये पैदा जो हुए थे जो है ईरान में, लेकिन जो है फिर आके हिंदुस्तान में आबाद हुए थे, दक्कन में, और यहीं पे पले बड़े हुए थे। ठीक है, उनकी जो किताब थी अख्तियारात कासमी दस्तूरुल अतिब्बा जो मशहूर थी, वो जो है उसमें एक किताब के अंदर कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या था, तो इसमें एक मुकदमा था, 3 मकालात थे और एक तलखीस था।
یعنی یہ کتاب جو تھی وہ مشتمل تھی ایک مقدمہ پہ، 3 مقالات پہ اور ایک تلخیص پہ، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن میم۔ ایوان کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ سے یہ امپورٹنٹ ہے، بلغم غیر طبعی ہوا، صفرا غیر طبعی ہوا، ایسا پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ قوام کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ تو قوام کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی کی کل 4 قسمیں ہوتی ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں مائی، جزئی، خام یا مخاطی اور زجاجی، ٹھیک ہے، یہ آپشن سیکنڈ ہو جائے گا۔ یہ آپ یاد کر لیجیے، قوام کے لحاظ سے، مدے کے لحاظ سے، بو کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ، صفرا اور بلغم امپورٹنٹ، اس میں بلغم بہت ہوتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں۔ بقائے نو کے لحاظ سے آدھائے رشتہ کتنے؟ یہ سوال میں نے شروع میں پہلی بار پوچھا تھا، اس میں آنسر دیا ہوا تھا اور اس کو کریکٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اصولیتی وغیرہ میں دیا ہوا ہے بقائے نو کے لحاظ سے 1 ہوتا ہے اور بقائے جنس کے لحاظ سے جو ہے 3، لیکن یہ غلط ہے، بقائے نو کے لحاظ سے آدھائے رشتہ 4 ہوتے ہیں۔ جو جنس میں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ بقائے نو کے لیے، یعنی جو آدھائے رشتہ وہ تو ہوں گے ہی، جنس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آ جاتا ہے، اس میں ایڈ ہو جاتا ہے بقائے نو کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بقائے نو کے لحاظ سے 4 ہوں گے آدھائے رشتہ، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے، امپورٹنٹ ہے یہ بھی، دوا کی تعریف کبھی آپ سے پوچھی جاتی ہے، ڈائریکٹ وے میں دوا، غذا، ذوالخاصہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو آپشن اس طرح دیا جائے گا، پھر پوچھ لیا جائے گا یہ ہے کیا، یعنی جو آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ اپنی صورت نوعیہ سے نامعلوم پرتوں کا اثر انداز کرنے والی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، یا غذائیہ سے متاثر ہو کر جسے بدن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھو، دوا سب سے پہلے بات کرتے ہیں غذا کی، کیونکہ ہماری زندگی میں شروعات غذا سے ہوتی ہے۔ تو غذا کیا ہوتا ہے؟ غذا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حرارت غذائیہ سے ہمارے بدن کے متاثر ہوں، متاثر ہونے کے بعد وہ جزء بدن بن جائیں، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم غذا کہتے ہیں۔ اور اگر حرارت غذائیہ سے متاثر ہوں لیکن وہ جزء بدن نہ بنے، یعنی ایسی چیزوں میں جس میں جزء بدن کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم دوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے کہ اپنے صورت نوعیہ سے نامعلوم کا مطلب یعنی کہ پوائنٹ آف سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وہ جسم کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ذوالخاصہ، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس میں دیکھیے گا اچھے سے، شہ میں انزل کے تعلق سے پوچھا گیا ہے۔ جو ترکیب ادویہ میں ہم لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ شہ میں انزل جو ہے ایما کے امراض میں اجوائن خراسانی کے ساتھ استعمال کراتے ہیں، بالکل بات صحیح ہے، شہ میں انزل کو امراض ایما میں اجوائن خراسانی کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا استعمال کیوں کرایا جاتا ہے؟ تو ریزن میں بیان کر رہا ہے کہ مقامی تغیر ہونے کی وجہ سے مروں کا احساس نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو شہ میں انزل ہوتا ہے اس کے استعمال سے مرڑ کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس مرڑ کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دوا کی ترکیب کرتے ہیں، یعنی اصلاح دوا کی غرض سے ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اجوائن ملا دیتے ہیں، اجوائن خراسانی ملا دیتے ہیں یا لفا شامل کر دیتے ہیں، تو اس کی شمولیت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، مقامی تقدیر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے مرڑ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو آزیشن بھی صحیح ہے، ریزن بھی صحیح ہے اور ایکسپلینیشن بھی صحیح ہے، تو اس میں آپشن جو ہے پہلا کریکٹ ہو جائے گا۔ یہ کوشچن کسی نے رپورٹ بھی کیا تھا، امپورٹنٹ ہے، اس لیے کوشچن بنایا بھی گیا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا غور سے اس کو دیکھیے گا۔ ابرک کے تعلق سے کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، ابرک کے تعلق سے غلط ہے، آپ سے بتایا گیا نمبر 1 دما میں مفید ہے، بھائی ابرک کو ابرک سے استعمال کیا جاتا ہے، بہت بہترین ریزلٹ بھی ہے، مقوی با ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے دافع ہما بھی ہے، اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جس میں موسٹلی لوگوں نے جو رپورٹ جنہوں نے کیا وہ ڈی کو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ اس میں ڈی نہیں ہوتا ہے، آپ اچھے سے پڑھیے، اسی لیے کوشچن بنایا گیا ہے، کیونکہ ان جنرل تینوں چیزیں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ابرک کا ایک خاص کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے،
है, ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके मुतरादिफात पूछे जाते हैं, बॉटनिकल नेम। इसमें मखसूस दवाएं हमने डाल दी है जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसखर का है, उसको कुद्दूस है, अदराकी है, सब बोल है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा गया है मॉडर्न से, जो करके उल्टा करके पूछ लिया गया है कि मिलान था, तो आप जो भी समझे। इसमें पूछा गया था नक्स ओमिका, तो नक्स ओमिका किसको कहते हैं हम लोग, अदराकी को कहते हैं। इस तरीके से पूछा गया था प्लेंटेको वेटा इसबगोल का नाम है, ठीक है। साइमोपोगान जो है वो आपका इसगर हो गया, लेवेंडुला स्टियोकस उसको कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बॉटनिकल नेम, आप मुतरादिफात से एक सवाल आते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रूसीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये केमिकल कभी कभी पूछा जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रूसीन जो होता है वो पिछला से अदराकी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है स्टिक्नीन और दूसरा ब्रूसीन। तो स्टिक्नीन चूंकि नाम मिलता जुलता रहता है तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ब्रूसीन इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा नाम हटके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उर्सुल अरवाह को जारूब दिमाग कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम ही है उर्सुल अरवाह या जारूब दिमाग, ठीक है। इसको या धारू बोलते हैं लेवेंडुला को, और इसका रीजन दे रहा है ये दिमाग के फुजलात को खारिज करके दिमाग का तनकिया करता है, दिमाग के फुजलात को खारिज करता है। झाड़ू का काम होता है सफाई करना, इसलिए इसका नाम जारूब दिमाग कहा गया है, और ये काम भी यही करता है। तो असर्शन भी चाहिए, रीजन भी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे इस तरीके से, अलग करके, दोनों अलग हैं, एक है क्या है। एक होता है दरिश्क, ठीक है, दरख्त। दरिश्क के दरख्त की हमारे दवा में 3 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और तीनों के नाम अलग अलग आते हैं। उसकी लकड़ी को हम लोग दारहल के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसके फल को हम लोग दरिश्क कहते हैं, जो जानवर दरिश्क है। दरख्त का पूरा नाम दरिश्क होता है, लेकिन उसका फल दरिश्क कहलाता है। उसकी लकड़ी दारहल कहलाती है, और उसके सारा को हम लोग रसोद कहते हैं, ठीक है। उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, बारबेरिस स्टाटा होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था कि दार जोबा, या उसी को दूसरा नाम दार जोबा है, दार हल्द है, ठीक है, चतेरा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो दार जोबा एक नबात है जिसकी लकड़ी को हम लोग क्या कहेंगे, दारहल कहेंगे, फल को क्या कहेंगे, दरिश्क कहेंगे, और उसके उसारा को रसोद कहेंगे। आपको सारे ऑप्शन दिए थे, आगे पीछे करके दिया हुआ था ताकि आपको याद हो जाए, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है अदविया और उनके जुज़े मुस्तामला का सही मिलान। बड़ा आसान है, देखिए आपको यहाँ से कि एक ऑलरेडी दरिश का मिल चुका है, तो दरिश का आप कर ही ले जाएंगे कि क्या है, फल हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद दिया हुआ जरनब, जरनब जो इस्तेमाल होता है उसका बर्ग इस्तेमाल होता है। उसके बाद जरनबाद, जरनबाद के हम लोग जड़ इस्तेमाल करते हैं। जंजबील, जंजबील क्या होता है, एक तना होता है, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये और नीट में भी पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका राइजोम इस्तेमाल करते हैं, स्टेम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजाज के ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया, ये भी खूब पूछा जाता है आपको, किसी अदविया का मिजाज। और अमूमन यहाँ तो मैंने इसलिए तो कासनी जो है उसके अलग अलग जुज़ो हैं, वो अलग अलग मिजाज रखते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा हमने क्वेश्चन पूछा है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। और वरना अमूमन आपसे जो मिजाज पूछा जाएगा वो पहले और चौथे दर्जे के अदविया ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था बर्ग कासनी, बीक कासनी, तुख्म कासनी और काफूर, ठीक है। तो बर्ग कासनी का मिजाज आपको सरतर होगा पहले दर्जे में। उसके बाद बीक कासनी का जो मिजाज होगा वो गर्म खुश्क होता है, गर्म पहले दर्जे में होगा, खुश्की दूसरे दर्जे में आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुख्म कासनी की बात करें तो ये सर्द खुश्क होता है, और काफूर की बात करें तो काफूर जो होता है मुरक्कबुल कुवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बेख और तुख में फर्क होता है? जी बिल्कुल, चारों क्या बीख और तुख में तो फर्क होता है, तुख सीड को कहते हैं, बीख जड़ को कहते हैं, और मिजाज दोनों के अलग होते हैं। बेख ये अरबी लफ्ज है ये क्या तो बड़ा सर? आसान था, देखिए फोटो दे दिया था, इसलिए दे दिया था कि और नेक्स्ट आने वाले हैं नाश्ता वगैरह के फोटो जरूर आएंगे, इस तरह के पैटर्न शेयर होंगे, ठीक है। तो ये आपका उस्तु कुद्दूस था, खूबसूरत था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है गोद और राल, ठीक है। गोद क्या होता है, राल क्या होता है, यहाँ सवाल जो पूछा गया था गोद और राल दोनों से मुरक्कब है, इसमें कौन सी दिया है। देखो एक होता है गोद, एक होता है राल। राल उसको कहते हैं जो अल्कोहल, राल लाम अल्कोहल, अल्कोहल में जो हल पजीर होता है उसको राल कहते हैं, जो पानी में हल पजीर हो जाए उसको गोद कहते हैं। राल में जैसे सकुनिया वगैरह है, और गोद वगैरह जो हम लोग खतीरा वगैरह पढ़ते हैं, बबूल वगैरह, ये गोद में आते हैं, ठीक है। एक होता है रातिनज,
یعنی جو رال اور گوند دونوں سے مل کے بنتا ہے اسی کو ہم رات نج کہتے ہیں. اور سوال یہ رات نج سے پوچھا گیا تھا تو اس میں رات نج کا ایگزامپل پوچھا گیا ہے. تو یہ جتنے ہوتے ہیں ہینگ ہے، لوبان ہے، خشک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ رات نج ہے. ٹھیک ہے، گوند اور رال دونوں سے مل کے بنے. یہ بھی بڑا آسان سوال ہے. اس میں دو سوال سمجھ لو ایک ساتھ کر لیا گیا. نارمل آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی مفصل احساس کی مثال کیا ہے. اس میں جو دیا گیا سارے کے ساتھ مفصل احساس ہے، لیکن اس کوشچن کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آگے نباتی لگا دیا گیا ہے. یعنی نباتی ماخذ کی مفصل احساس دوا کون ہے؟ تو ہم لوگ ایگزام میں جلدی کرتے ہیں، بس دیکھتے ہیں مفصل احساس آلات دوا مار دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. پڑھے آپ بہت اچھے سے رہتے ہیں، پتا بھی رہتا ہے، تبھی آپ نے آنسر صحیح کیا کیونکہ سارے کے سارے مفصل احساس ہیں. لیکن سوال پوچھا کہ نباتی ماخذ کی مفصل احساس. تو حجر الیہود کیا ہے؟ یہ معدنی ہوتا ہے. سنگ سر ماہی کیا ہوتا ہے؟ یہ حیوانی ہوتا ہے. اور حب القط یہ وہ نباتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے مندرجہ ذیل میں افلونیا رومی کی وجہ تسمیہ. ایک وجہ تسمیہ سے سوال آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی مخصوص کچھ اطباء کے نام پہ ہیں اس پہ پوچھا جاتا ہے. کچھ دواؤں کے خصوصیات کی بنیاد پہ اس کے نام رکھے گئے ہیں. اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو یہاں افلونیا رومی کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو چونکہ اس نسخے کو جو ہے افرین رومی نے ترتیب دیا تھا، اس کی بنیاد پہ اس کا نام افرینیا رومی رکھا گیا. ٹھیک ہے، جس کو جو ہے تسمیہ جو ہے ترتیب کردہ کے نام پہ مرتب جس نے کیا اس کے بنیاد پہ نام دیا گیا ہے. پھر اگلا ہے کہ تریاق ثمانیہ کی. بڑا آسان سمجھ سوال پوچھا وجہ تسمیہ کی کیونکہ آتے یہ بہت ہیں. تو تریاق ثمانیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس میں ثمانیہ جو ہے 8 کو کہتے ہیں، عربی لفظ ہے. اس میں 8 کو ثمانیہ کہتے ہیں. تو اس میں چونکہ 8 اجزا دوائی شامل ہیں، اسی بنیاد پہ اس کو تریاق ثمانیہ کہا گیا. ٹھیک ہے، تریاق اربع ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں 4 ہیں، تریاق ثمانیہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن. تفوق مقلیاسا کے تعلق سے صحیح ہے. ٹھیک ہے، مقلیاسا کیا ہے؟ سریانی زبان ہے. تفوق مقلیاسا کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں اس کے تعلق سے اس میں 4-5 اسٹیٹمنٹ بنائے گئے ہیں. تو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے مقلیاسا کیا ہے؟ سریانی زبان ہے. بالکل صحیح، مقلیاسا سریانی زبان ہے. اس میں جز خاص حالون شامل ہے. اس کا جز خاص جو ہوتا ہے حالون ہوتا ہے، جس کو ہم حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف وہی جو ہے وہ سریانی زبان ہے، حرف مقلیاسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ضرب المیدہ میں ہے. ٹھیک ہے، بےحد مفید ہوتا ہے ضرب المیدہ میں. تو یہ سارے کے سارے مقلیاسا کے تعلق سے صحیح ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن. پھر ہمارا اگلا کوشچن ہے ادویہ اور ان کے موجد کا صحیح ملان. ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ سوال اس سے بھی آتے ہیں. کسی بھی ادویہ کی موجد کا نام پوچھ لیا جائے گا. یہاں سے آپ کو جو ہے اقراص کا پوچھا گیا ہے اور تریاق اربع، یہ دونوں کے ایک ہی ہیں، اقراص اور تریاق اربع کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو اس کے جو ہیں اقراص اور تریاق اربع کے جو موجد ہے وہ ادر ماخذ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ سے پوچھا گیا شربت کا، تو شربت کا جو ہے فیثاغورس تھا. اس کے بعد مرہم کا پوچھا گیا ہے، تو مرہم کا آپ کا جو ہے وہ تھا اقراط. ٹھیک ہے، زیمات کا پوچھا گیا جالینوس ہے، تو اسی لیے اس کا نام زیمات جالینوس بھی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ سے اطباء عرب کی دوائیں پوچھی جا سکتی ہیں اس طرح سے کر کے کہ اطباء عرب کی ایجاد کون ہے، اطباء مصر کی کون ہے، اطباء ایران کی کون ہے، اطباء ہند کی. اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. بقیہ جو مین ہے اس میں صفوف ہے، زماد ہے اور شربت ہے اور قرص ہے. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن. کشتہ اور اس کے شناخت کے تعلق سے صحیح ملان ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سوال ضرور آتا ہے کشتہ سے اور کشتہ کے شناخت کے لیے کہ کیسے اس کی شناخت کی جائے گی. کشتہ کیسا ہے، قلعہ کا ہے تو کیسے ہوگا، مطلب ہر چیز کا، ابرک کا، نقرہ کا، شیشہ کا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو قلعہ، نقرہ، شیشہ اور سیماب دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیا ہوا ہے ملان کرنے کے لیے. اب آب لیمو میں کھرل کرنے پر سرخ رنگ ہو جاتا ہے. آب لیمو میں جو اگر ہم کشتہ قلعہ ہے اس کے آب لیمو میں خر کریں گے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کشتہ نقرہ ہے، کشتہ نقرہ کو اگر لونگ کے ساتھ کھرل کرنے پر سیاہ رنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم بات کریں کشتہ شیشہ کی تو یہ آگ پر رکھنے پر سرخ رنگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شناخت ایسے ہی کرتے ہیں. اس کو ہم جب پہچان کرنا ہوتا ہے، اگر مان لو آپ کو کشتہ قلعہ ملا تو کشتہ قلعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس طرح سے ہم پہچان کر لیں گے. اگر اس طرح سے ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ کشتہ اس کا نہیں ہے، فرضی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کشتہ سیماب جو ہوتا ہے، کشتہ سیماب میں یہ ہوتا ہے آگ پر
डालें तो वो धुआं नहीं देगा। अगर सीमा आपका पुछता है और आग पे डाल दे तो धुआं नहीं होगा उससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा पुछता। फिर है एक सवाल इससे भी पूछा जाता है, हर साल आता है, हमेशा आता है और हमेशा आता रहेगा, ठीक है। औजान से, अब औजान का यहाँ पूछा गया है, एक माशा, एक रत्ती, एक मिसकाल इसको कहेंगे, एक तोला किसको कहेंगे। तो एक माशा बराबर 1 ग्राम के नियर अबाउट होता है, क्योंकि 12 उसके बराबर होता है। तो लेकिन हम लोग नियर अबाउट 1 ग्राम मानते हैं और आंसर भी सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उसके बाद एक रत्ती होता है, एक रत्ती जो होता है वो होता है 125 मिलीग्राम के बराबर, ठीक है। हम लोग जितने पुश्ता वगैरह होते हैं हम लोग एक रत्ती में ही देते हैं, या जितने जो है सम्मी अदविया होते हैं उनको रत्ती में ही अमूमन दिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह पूछा गया एक मिसकाल, तो एक मिसकाल जो होता है वो होता है 3 माशा 2 रत्ती के बराबर। इसी तरह एक तोला में 10 ग्राम होते हैं, ठीक है, अमूमन। ठीक, 12 तोला बराबर 10 ग्राम होता है, अरे 12 माशा बराबर 10, एक तोला होता है, एक तोला 10 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है बहरेपन में मुफीद है। बहरेपन में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो रोगन बादाम तल्ख, रोगन बादाम शीरी। देखो बहुत बढ़िया इस्तेमाल है रोगन बादाम तल्ख का। शीरी जो होता है हम लोग कॉन्स्टिपेशन वगैरह में बेहतरीन रिजल्ट देता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। रोगन सर्फ वगैरह और रोगन औजा वगैरह ये मुजल मुफासिल वगैरह के लिए मुस्तामल है, ठीक है। तो अदविया के कभी कभी खवास पूछे जाते हैं, उसके फेल खास, ठीक है। उसके बाद माँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, हर साल माँ का कोई सवाल आ जाता है, कभी माउद असल माउद उसूल, ठीक है। इस तरीके से माउद शहीर, इसमें आपसे पूछा गया है मिलान करने के लिए, तो माउल असल किसको कहते हैं, शहद के पानी को, फिर माउद शहीर जौ के पानी को। उसके लिए तो आपका आसान था, दो जो आता वो अपने आप ऑटोमेटिक मिला देता। कंफ्यूजन दो में था, सिर्फ माउजहब और माउद फिजा। फिजा चांदी को कहते हैं तो चांदी का पानी हो गया, माउजहब सोने का पानी हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था। वो कौन सा माजून है, इस तरीके से थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी के पीछे याद के पीछे कोई खास बात रहती है किसी मुरक्कबात में, तो उस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से माजून तबीदुल वर्क के ताल्लुक से है, यहाँ पे पूछा गया था वो कौन सा माजून है जो अहद उमैया में तैयार किया गया और हम वजन सोने के हिसाब से फरोख्त। ये जो माजून तबीदुल वर्क था ये बनु उमैया के दौर में तैयार किया गया था। एक तबीब था अबुल बरकात, उसी का एक शागिर्द था, उसने ये माजून तैयार किया था, माजून तबीब वर्क, ठीक है। और इसको सोने के वजन के बराबर फरोख्त करता था, यानी जितना माजून तबीब वर्क देता था उसी के बराबर सोना लेता था, ठीक है। उसके बाद आपका ये अमराज का ताल्लुक सवाल है, अमराज खिलकत की किस्में शामिल नहीं है। तो हम पढ़ते हैं सुए मिजाज, सुए तरकीब, तफरुक साल अमराज मुफरदा में। उसके फिर अमराज मुफरदा की तकसीम जब करते हैं, सुए मिजाज, सुए तरकीब, तफरुक साल, सुए मिजाज की अपनी सादा मादी वगैरह किसमें पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग सुए तरकीब में पढ़ते हैं 4 खिलकत, मिकदार, अदद और वज़ा। तो यहाँ पूछा गया अमराज खिलकत की किस्म में शामिल नहीं है, तो अमराज शक्ल, अमराज मजारी, अमराज अविया और अमराज सफा ये किसके हैं, अमराज खिलकत के हैं। अमराज अदद खुद अपने आप में एक अलग तरकीब है, ठीक है। अमराज अदद, अमराज खिलकत और अमराज वज़ा वगैरह, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तफरुक साल का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तफरुक साल से सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि किसी हड्डी का तफरुक साल या बतर का या उसका जो है कहीं अदला का तफरुक साल, इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बतर है, हज, कता और सद इसको कहेंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है वो जो है बतर जो है वो कहलाता है किसके, आसाब के तफरुक साल को, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हज किसको कहेंगे, अजला की चौड़ाई में तफरुक साल। इसी तरीके से कता कहेंगे हमारा जो है वो रीत का तफरुक साल, कटा कता कटने को कहते हैं, ठीक है। और सदा कहेंगे हड्डी का तफरुक साल, लंबाई, ठीक है। तो जिल्द में हम लोग पढ़ते देखो तफरुक साल में जिल्द में एक खदश मैच करके आता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है हड्डी में आपसे ज्यादातर ये शुगा पूछा जाता है अंदरूनी सबब की वजह से, और उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। आसाब के तफरुक साल में बतर वगैरह पूछा जाता है, तो ये चौड़ाई में होते हैं बतर और लंबाई में होते हैं शक कहते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट है अजला का, अजला में हतक होता है, सिरे पे होता है हतक और हज चौड़ाई, ठीक है। शराइन में इंतजार मुद्दम वगैरह होता है, और अर्शिया में फतक वगैरह जो हम लोग कहते हैं, ये है तफरुक साल, उससे ज्यादा नहीं आता, इतना पढ़ लो बहुत है। उसके
بعد मौसम, मौसम के मिजाज क्या होते हैं, इस पे एक सवाल आता है. इसमें अमूमन आपको 3 मौसम सबको क्लियर होते हैं, ठीक है. लेकिन चौथा जो होता है मौसम खरीफ का, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों में इसमें कहीं किताबों में कुछ लिया हुआ है, कहीं किताबों में कुछ मिजाज दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग जो है जो मानते हैं मौसम खरीफ का जो मिजाज मानते हैं वो बारिश याबिस होता है, ठीक है. मौसम शता, सॉरी, मौसम खरीफ का जो मिजाज हम लोग बारिश याबिस मानते हैं, ठीक है. सौदा के ताल्लुक से तो यहाँ पे ये का थर्ड हो जाएगा. यानी रबी का मिजाज कैसा होता है, मुतदिल होता है. उसके बाद सैफ है, सैफ को मौसम सैफ को हम गर्मी का मौसम कहते हैं या समर कहते हैं, उसको इसका मिजाज हार याबिस हो जाएगा. उसी तरीके से खरीफ है, खरीफ को हम लोग ऑटम सीजन कहते हैं, पतझड़ का मौसम, इसका मिजाज बारिश याबिस हो जाएगा. शीता, शीता विंटर, विंटर को कहते हैं या उसी को मौसम सरमा कहते हैं या उसी को विंटर कहते हैं, उसी को सर्दी कहते हैं. सर्दी का मिजाज बारिश तब हो जाएगा, ठीक है. तो उसका दूसरा नाम याद कर लीजिए, मिजाज अपने आप समझ में आ जाता है गर्मी सर्दी से. अगला सवाल है, इलामात के जरिए बदन के किस कैफियत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं. सेहत के बारे में, मर्ज के बारे में, हालत सालसा के बारे में. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इलामात अमूमन जहन पे जाएगा कि मर्ज को हम जानने के लिए इलामात का सहारा नहीं. इलामात जो है मर्ज की वही बताता है, इलामात सेहत को भी बताता है. हम लोग पढ़ते हैं ना इसलिए इलामात की किस्में, अलामत सहैया, अलामत मर्ज किया. इलामात जो है हालत मर्ज को भी बताएगा, हालत सेहत को भी बताता है, और हालत सालसा यानी जो दरमियानी हालत उसको भी इलामात, उसकी भी इलामात होती है. इलामात तीनों को बताता है, ठीक है. इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके नफ्स. नफ्स से आपके एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नफ्स के बारे में कि नफ्स तारीफ कभी किसने क्या की है, नफ्स की हरकत के बारे में, ठीक है. उसमें कितने नफ्जा होते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं. उसके अलावा उसके मुरक्कब नफ्स और मुफरद नफ्स, ठीक है. यही सब है, बहुत ज्यादा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा. उस टाइप के सवाल हम आपसे अक्सर पूछते रहते हैं और पूछते रहेंगे. तो दिया हुआ है पहला बयान नफ्स के ताल्लुक से इंक़िलाब के बाद वाले सुकून को सुकून मुहित है. गलत है. इंक़िलाब के बाद वाले सुकून को हम लोग क्या कहते हैं, सुकून दाखिली या सुकून मरकजी कहते हैं, मुहिती नहीं कहते. इत्तेसाब के बाद वाले सुकून को हम लोग सुकून मुहिती कहते हैं, उसी का दूसरा नाम सुकून खारिजी है. तो इंक़िलाब के बाद वाले सुकून को सुकून मुहिती नहीं कहते, बल्कि उसको सुकून दाखिली या सुकून मरकजी कहते हैं, क्योंकि इंक़िलाब के बाद क्या होता है, वो मरकज की तरफ जाता है, ठीक है. तो इसमें स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही. उसके बाद आपसे पूछा गया नफ्स के ताल्लुक से ये चीजें हैं, नफ्स मुरक्कब हैं, उसकी जो है सिर्फ माना पूछ लिया गया. बहुत ही आसान सा सवाल है. नफ्स मिसली, नफ्स ज़म्बार, नफ्स दूधी, नफ्स इशारी, नफ्स मुस्तद, ठीक है. तो आपको इसमें जो है तकलानुमा मिसली कहते हैं नफ्स को. तकलानुमा नफ्स वाली जो होती है उसको नफ्स मिसली कहते हैं. इसी तरीके से जो जम्बुलफार कहती होती है चूहे की धूम की जैसे जो होता है, किसको कहते हैं, तुमको फार चूहा होता है. उसके बाद नफ्स दूधी, दूधी का मतलब क्या होता है, कीड़ा, ठीक है. हमारे तो दूधी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से उसको जो है. उसके बाद नफ्स मिंशारी यानी आरी की तरह, ठीक है. उसके बाद नफ्स मुस्तवी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल के अकसाम और उसकी तादाद से मिलान करें. हमने यहाँ सारे एक साथ इकट्ठा करके दे दिया आपको क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको बोल के इसमें पूछे जाते हैं आपको कि अलवाने बोल, अलवाने बोल कितने हैं. उसके बाद फिर अलग अलग रंग के क्या होते हैं. जैसे अलवाने बोल आपसे पूछा जाए तो अलवाने बोल 5 होते हैं जिसमें, ठीक है. सफेद, सब्ज, जर्द, सुर्ख, स्याह. उसके अलावा फिर जर्द की कितनी किस्में होती हैं, सब्ज की कितनी किस्में होती हैं, स्याह की कितनी किस्में होती हैं. इस तरह से आपसे सवाल डायरेक्ट एक क्वेश्चन में आता है. हो सकता है मिलान में इस तरह लंबे क्वेश्चन बना दिए जाए. तो यहाँ पे आपके सफेद जो होते हैं बोले अबेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी 8 किस्में होती हैं. बोले जर्द की कुल 6 किस्में होती हैं. बोले सब्ज की 5 किस्में होती हैं. सुर्ख की 4 किस्में होती हैं. स्याह की 3 किस्में होती हैं. आप इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा. सबसे ज्यादा जो किस्में होती हैं वो सफेद की होती हैं. उसके बाद जर्द की होती है, फिर सब्ज की होती है, सुर्ख की होती है, फिर स्याह की होती है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का है, वो उमूर जिनका लिहाज मिकदार दवा तजवीज़ करते वक्त जरूरी नहीं होता उसे अशिया मुनासिबा या अशिया मुलायमा कहते हैं जी. वो चीजें देखिए, एक कानूनी कमियत हम लोग पढ़ते हैं ना, कानूनी कमियत यानी मिकदार की दवा का तयन करने के लिए दवा कितनी देनी है, कुछ उसूल होते हैं.
تو اس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم توجہ دیتے ہیں کہ عضو کی طبیعت کیا ہے، مقدار مرض کتنی یعنی مرض کی مقدار کتنی، اور اشیاء ملازمہ یعنی وہی جس کو ہم کہتے ہیں اشیاء مناسبہ یا اشیاء ملائمہ. تو ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے مقدار کے تعین میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو آپشن دیا ہوا ہے، پہلا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ وہ امور جن کا لحاظ مقدار دوا تجویز کرتے وقت ضروری نہیں ہوتا اسے اشیاء مناسبہ کہتے ہیں. وہ امور جن کا دوا کا مقدار تجویز کرتے وقت ضروری ہوتا ہے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں اشیاء مناسبہ. ٹھیک ہے. پہلا غلط ہو جائے گا. یہ ضروری ہوتا ہے. اشیاء مناسبہ کیا ہوتے ہیں؟ ضروری ہیں دوا کے مقدار کے تعین. جیسے ہم لوگ جنس، عمر، عادت، وقت، ملک، نسل، صحنہ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں مثلا، اور جو ہے طبیعت مخصوصہ وغیرہ، مریض کے خیالات وغیرہ، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ اشیاء مناسبہ. اشیاء مناسبہ کی کل تعداد 20 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیان دو تو بیان دو صحیح ہے، پہلا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اشیاء مناسبہ ضروری ہوتے ہیں. اگلا کوشچن ہے ہمارا assertion ریزن کا ہے. ریاضت کے تعلق کے بعد، یا بہت امپورٹنٹ ہے، ریاضت کے بعد کی جانے والی دلت کو دل کے استعداد. دیکھو ایک ہوتا دل کی استعداد، ایک ہوتا دل کے استرداد. تو استعداد اور استرداد، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی ڈائٹ یہی سے پوچھا جاتا ہے استعداد کب کہتے ہیں، استرداد کب کہتے ہیں. تو جو شروعات کی جاتی ہے اس کو استعداد آمادہ کرنے کے لیے، یعنی ریاضت سے قبل جو دلت کی جاتی ہے اس کو دل کے استعداد کہتے ہیں، اور بعد میں جو کی جاتی ہے وہ استرداد کہتے ہیں. ریسرشن میں دیا ہوا ہے ریاضت کے بعد کی جانے والی دلت کو دل کے استعداد کہتے ہیں. یہ غلط ہو گیا. ریاضت کے بعد جو دلت کی جاتی ہے اس کو دل کے استرداد کہتے ہیں. ریزن کہہ رہا ہے کہ ریاضت کے بعد کی جانے والی دلت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فضلات ورزش سے خارج نہیں ہوئے ہیں آسانی سے خارج ہوئے. بالکل صحیح بات ہے، اسی لیے دل کے استرداد کی جاتا ہے. تو اس میں ریزن صحیح ہے، سیشن غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی صرف ریزن صحیح ہو جائے گا. پھر ایک کوشچن ہے آپ کا امراض اور حجامہ کے مقام پہ. ایک سوال امپورٹنٹ ہے حجامہ کے مقام سے، سوال آتا ہے کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے حجامہ سے. کبھی مقام پوچھ لیا جاتا ہے، کبھی مرض پوچھ لیا جاتا ہے کس مرض میں کون سا حجامہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو آپ کو ورم رحم میں، کولن میں، خناک میں، نفس الدم میں، اس طریقے سے آپشن دیا ہوا ہے. ورم رحم میں مقام کیا ہوگا حجامہ کا؟ پھولوں کے مابین لگاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کولن کی صورت میں ہم لوگ ناف کے درمیان لگاتے ہیں یا ناف کے نیچے اوپر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خناک کی صورت میں مٹھی پہ لگاتے ہیں، اور نفس الدم کی صورت میں شانوں کے مابین لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اعتبار میں پوچھا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. پٹیوں پہ لگائے جاتے ہیں اعتبار سے حیض میں، اور کثرت ہے دونوں اپوزٹ ہیں اور پوچھے جاتے ہیں. اعتبار سے حیض میں نیچے کی طرف لگائیں گے، یعنی جو ہے مادے کا میلان نیچے کی طرف کرنا ہوگا تو پنڈیوں پہ لگا دیں گے. اسی طریقے سے کثرت حیض کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ مالا کریں گے اوپر کی طرف، یعنی پستان کے نیچے لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یاد کر لیجیے، بھولے گا نہیں. اگلا کوشچن، سنگیا میں گرما میں 3 گھنٹہ دن چڑھے سنگیا کھنچوانا چاہیے. پہلا بیان دیا ہوا ہے. دوسرا دیا ہوا سردی کے مہینے میں ابتدائی تاریخ میں سنگیا کھنچوانا. دیکھو ایام گرما میں جو ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ دن چڑھے، اور سرما میں 3 گھنٹہ دن چڑھے سنگیا کھنچوانا چاہیے. ٹھیک ہے. گرمی میں کیا ہو جلدی کرنا چاہیے، اور سردی میں تھوڑا سا دیر تاکہ جو ہے دھوپ وغیرہ نکل آئے. تو یہ پہلا غلط ہو جائے گا. ایام گرما میں نہیں بلکہ ایام سرما میں 3 گھنٹے. دوسرا بیان دیا وہ سردی کے مہینے میں ابتدائی تاریخوں میں سنگیا کھنچوانا چاہیے. سنگیا ہمیشہ ابتدائی تاریخوں میں نہیں بلکہ 15 تاریخ کے بعد والے میں، آخر میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دونوں بیان غلط ہو جائیں گے. شرائط استفراغ میں پورا کوشچن دکھائیے، کوشچن پورا صحیح. شرائط کے استفراغ میں شامل نہیں ہے. یہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں آپشن دیا ہوا ہے کہ اس میں کون سے ہیں جو شرائط استفراغ میں شامل نہیں ہے. بھائی عمر کا ہم لوگ دیکھتے ہیں، عمر کس عمر کا ہے اسی حساب سے ہم لوگ استفراغ کرتے ہیں. اس کے بعد پیشہ بھی دیکھا جاتا ہے. کوئی اگر پانی میں بہت زیادہ رہنے والا ہے سر یا اس بہت کوشچن میں پوچھا ہوا زیادہ ہے مشکل کے شامل ساتھ ہیں. کرنے والا ہے تو اسی حساب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے مزاج کا بھی اس میں تعین کرتے ہیں، آب و ہوا کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور نیکسٹ کیا ہے عادت کا بھی لحاظ کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کے استفراغ کی عادت نہیں ہے اس کو تیز استفراغ دے دیں گے تو دقت ہو جائے گی، یا جس کو عادت ہے اس کو ہم تیز استفراغ کرائیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں سبھی شرائط استفراغ میں شامل ہے. آج ہو جائے گا آنسر. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے کس طبیب میں فسد کو ممنوع قرار دیا. آیا ہوا کوشچن ہے. ارسطو کے نزدیک فسد نہیں کرانا چاہیے. ارسطو نے مانا تھا فسد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर के पिछले हिस्से में सर्दी पहुंचाने से मना किया। जालिनोस ने कहा था सर के पिछले हिस्से में सर्दी नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है दशा और रिया के उस हिस्से में, जब वर्म दशा और रिया के उस हिस्से में होता है जो पीछे मोहरों से मिला हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जातुल अरज। ठीक है, जातुल जनाब आप लोग जानते हैं, जातुल रिया जानते हैं प्लूसी वगैरह को, जातुल जिल्द भी जानते हैं। तो जातुल अरज जब वर्म क्या होता है? दशा और रिया के उस हिस्से में होता है जो पीछे मोहरों से मिला हुआ होता है, यानी पीछे की तरफ जो मोहरे होते हैं उस हिस्से में अगर वर्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं जातुल अरज। ठीक है, पूछा गया आपसे सुजाक के मुतरादिफात। ठीक है, तो सुजाक की ये जो है हिरका, ये सारे के सारे नक्काल जहरा सब के सब जो हैं ये सुजाक के मुतरादिफ है। ठीक है, तो कभी डायरेक्ट एक ही नाम पूछा जाता है, यहाँ पे एक साथ दे दिया गया ताकि आपको याद हो जाए आसानी से, भूले नहीं। नहीं तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है सुजाक में हिरका क्या होता है, आपसे ना आपको उसको गनोरिया वगैरह जो भी है बहुत सारे दिए जाते हैं। ठीक है, अकूबा भी इसी को कहते हैं हम लोग, दोरा भी इसी को कहते हैं, हिरका भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। मुतरादिफात कभी अमराज के मुतरादिफात पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है बहुत सारे। ठीक है, अस्थमा वगैरह के, सुजाक के, सब याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद असेशन का सवाल है कि शकीका का मकामी मर्द, शकीका का नाम मकामी मर्द के नाम पर रखा गया क्योंकि इस मर्द में दर्द आधे सर में होता है। बिल्कुल सही बात है। अशेषण शकीका, शक के माने आधा, उसी हिसाब से ये सर आधा सीसी का दर्द भी कहलाता है। रीजन दिया शकीका में अमले बतर किया जाता है जिसमें उन शरियान को काट दिया जाता है जिससे अखलात और बुखारात दिमाग में चढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें अमले बतर किया जाता है। लेकिन असर्शन रीजन दोनों सही, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है बतर करने का मतलब और उसका नाम शकीका क्यों रखा गया। ठीक है, अगर इसी जो असर्शन को इसी दो पार्ट में हम कर दिए होते, आधा क्वेश्चन को असर्शन बना दिए होते, इसका नाम मकाम मर्द के रखा गया और रीजन बना दिए होते क्योंकि इसमें मर्द दर्द आधे सर में होता है, तब ये ऑप्शन असर्शन रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे रीजन असर्शन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा कर नहीं रहा कि हमने बतर का एक्सप्लेनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है उससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नुज़ूल माह से। ठीक है, नुज़ूल माह में आपसे पूछा गया है अमल के बारे में, बहुत सारे अमले। एक मिनट, क्वेश्चन अमले कदा, अमले इस्तेसाल, अमले तस्कीब और अमले तनकीब, ये पूछा गया। असल में नुज़ूल माह में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर किए जाते हैं, तो कब क्या किया जाता है इसी का मिलान था आपको। तो अमले कदा रतूबत जलीदिया जगह से हटा दिया जाता है अमले कदा में। अमले इस्तेसाल में क्या होता है, करनिया में शिदाब देकर रतूबत जलीदिया बाहर निकाल दिया जाता है। तो कदा में क्या होता है, रतूबत जलीदिया को सिर्फ हटा दिया जाता है वहाँ सामने से, ताकि कुल्ली का रास्ता साफ हो जाए, दिखाई देने लगे। इस्तेसाल में क्या होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और तस्दीक का मतलब ये होता है घोलना, तो तहलील कर दिया जाता है। ठीक है, रतूबत जलीदिया को हमने तस्दीक, यानी अगर रतूबत जलीदिया को तहलील किया जाए तो उसको हमने तस्दीक कहेंगे, अगर उसको अपने मकाम से थोड़ा सा हटा दिया जाए ताकि दिखने लगे तो हमने कदा कहेंगे, और बाहर निकाल दिया जाए उसको हमने इस्तेसाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उसको हटा के नीचे की तरफ वहीं डाल दिया जाए तो हमने तनकीस कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक का फोर्थ, बी का थर्ड हो गया ना। फिर दिया हुआ है स्टेटमेंट का सवाल, उरूक खशना की इम्तला को बुहर कहते हैं और शराइन रिया की इम्तला को रिबू कहते हैं। गलत है दोनों, उरूक खशना की इम्तला को रिबू कहते हैं और शराइन के इम्तला को, शराइन रिया की इम्तला को बुहर कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ दोनों बयान, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। बच्चों में पाए, क्वेश्चन पूछा गया है गीदा नियामे के ताल्लुक से बच्चों में पाया जाने वाला कौन सा गीदा नियमा कसीर वकू है जो सूरगैया का सबब बनता है। ठीक है, बच्चों में जो होता है वो सिगार पाए जाते हैं, बच्चों में जो ज्यादा पाए जाते हैं गीदान खलिया जिसको कहते हैं, दूजुल खल जिसको कहते हैं, चूरने दाने, ये सब बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसी तरह से मिलता जुलता जो दाना होता है गीदान कलाबिया जिसको कहते हैं कस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा होगा टीनिया वगैरह में। तो गीदान कलाबिया जो होते हैं
वो बच्चों में कसूर वकू होते हैं और ये सूलपनिया का वजह ही बनते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग कराते हैं वो इंटेस्टाइनल और उसी वजह से एनीमिया हो जाता है बच्चों में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़ोफ़ेबा के इलाज के लिए आखिरी दर्जे में किया जाता है। अक्सर एक आध साल के गैप पे हर साल ये पूछा जाता था, समझ लो एक साल छोड़ के दूसरे साल जरूर पूछा जाता है ज़ोफ़ेबा के इलाज के दर्जे। तो इसके 3 दर्जे होते हैं और हमेशा इसका ख्याल भी रखना चाहिए ज़ोफ़ेबा के इलाज के लिए। ठीक है, आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कोई भी ज़ोफ़ेबा का इलाज करना हो तो आप सबसे पहले करें उसका तफ्सील तफ्सील। दूसरे दर्जे में तक़वियत करते हैं और मुहर्रिकात का इस्तेमाल हमेशा तीसरे दर्जे और आखिरी दर्जे में करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ज़ोफ़ेबा वाला है तुरंत मुहर्रिक अद्विया दे देते हैं, अमूमन ऐसा करते हैं। रिजल्ट सही नहीं आते। फिर आखिरी क्वेश्चन है आपका नमला के ताल्लुक से। मकाम के एतबार से नमला अरबी यानी नमले शफिया, नम खतालिया, नम कज़िया, नम जावरसिया कब कहेंगे। ठीक है, तो अगर नम शफिया, शफ मतलब होता है बाँछों पर, जिसको उसी को हम बाँछ भी कहते हैं, मुंह बोलते हैं जो साइड में दोनों, अगर वो बाँछों पे है तो उसको कहते हैं नमले शफिया। उसी तरीके से अगर खतालिया, खतालिया कहेंगे अगर हशफा के गिलाफ के अंदर या बाहर हो तो उसके खतालिया कहते हैं। उसके बाद नमले कज़िया कहेंगे अगर असली दर्द नहीं होता, जावरसिया बाजरे की तरह होते हैं तो उसको जावरसिया, जावरसिया बाजरे को कहते हैं। बाजरे के मानक जो होता है अरबी उसको कहेंगे नमले जावरसिया। होठों पे या होठों के किनारों पे जो पाया जाता है तो उसके नमले शफिया या बाँछों पे, खतालिया वो हशफा पे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट और हो तो बताएं। आई थिंक जिसने भी कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट किए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन गलत नहीं थे, आपके अप्रोच थोड़े से इधर उधर हो गए थे। अब आगे कंटिन्यू मैम आप कर लीजिए थोड़ा सा। जी ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्लियर ना हुआ तो पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न वाला। सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन। मैम आप कंटिन्यू करिए यहाँ पे। कभी ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट ब्यूरो से ऐसे पूछा जाता है कि कंट्रीज का नाम दिया होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहला फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो था इस्टेब्लिश किया गया, और इंडिया में भी कहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आवाज नेक्स्ट। नहीं आ रही मैम। अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो कभी कभी आपको अलग अलग कंट्री का नाम दिया होता है और पूछा जाता है, तब उसमें आंसर होगा इंडिया। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो था इंडिया में तो एस्टैब्लिश किया गया, और इंडिया में भी कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एपोप्टोसिस रिफर्स टू। तो हमें पता है सेल डेथ कई टाइप से होती है। तो एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। कभी ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, इसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो नेक्रोसिस होती है वो होती है पैथोलॉजिकल, वो हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, उसमें सेल में इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होता है। तो एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये सब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट इज ए डिसऑर्डर ऑफ। तो हम सबको पता है कि गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। तो गाउट जो होता है डिसऑर्डर, वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सपोर्टिंग न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू टू होल्ड टुगेदर द न्यूरॉन्स। यानी कौन से ऐसे सपोर्टिंग टिश्यू हैं जो न्यूरॉन्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखते हैं। तो जो ग्लायल सेल होते हैं उनका ये काम होता है, ग्लू से बना है ये, एक दूसरे से चिपका के रखना। तो वो न्यूरॉन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। सिनॉप्स साइनॉप्स जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, कि दो न्यूरॉन के बीच में होता है। और उसके बाद जो न्यूरोलिमा होता है वो श्वांस शीथ होती है, आउटर में मोस्ट जो न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है जो एक्सॉन को सराउंड करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोलिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैल्केनियम इज डिवाइड ऑफ मसल अटैचमेंट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी बोन है जिसपे कोई भी मसल अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये जो होती है टैलस जो बोन होती है उस पे कोई मसल अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट है हार्टमैन्स पाउच इज प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। तो हार्टमैन्स पाउच जो होता है गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है हार्टमैन प्रोसीजर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हार्टमैन पाउच और हार्टमैन प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। हार्टमैन प्रोसीजर जो होता है वो कोलोस्टमी में किया जाता है, यानी कि रेक्टम को क्लोज करके कोलन को कहीं ओपन कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं कोलोस्टमी। तो वो होता है हार्टमैन्स प्रोसीजर। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेट एक्यूरेट एज थ्रू टीथ बाय मींस ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन। तो देखिए इसमें दो ऐसे तरीके दिए हुए हैं जिससे हम टीथ के थ्रू एज देखते हैं। एक जो डी ऑप्शन दिया हैसे मेथड, हैसेज रूल ऑफ हैसेज होता है, उससे फीटल एज कैलकुलेट की जाती है लेकिन लेंथ से कैलकुलेट की जाती है। और इसमें पूछा जा रहा है एज को टीथ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरीका होता है, बॉयडेज मेथड और गुस्टाफ्सन मेथड। जो बॉयडेज मेथड है उसमें इनामिल के ऊपर इंक्रीमेंटल लाइन देखी जाती है, और जो गुस्टाफ्सन मेथड है उसमें कई चीज है लेकिन उसमें सबसे मेन जो है वो रूट की ट्रांसपेरेंसी कितनी है वो देखा जाता है। तो इसमें साफ साफ मेंशन था कि इंक्रीमेंटल लाइन से, तो इसका आंसर जो होगा बॉयडेज मेथड है। उसके अलावा एक और होता है रूल ऑफ हैसे और रूल ऑफ मॉरिसन। रूल ऑफ हैसे जो होता है वो फर्स्ट 5 मंथ में करते हैं, और जो रूल ऑफ मॉरिसन है वो 5 मंथ के बाद करते हैं। अगर रूल ऑफ हैसे से कैलकुलेट करना होता है तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं जितनी लेंथ होती है सेंटीमीटर में क्राउन से लेके हील तक, और अगर 5 मंथ से ज्यादा का फीटस हो तो हम जितनी लेंथ होती है उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो वो रूल ऑफ मॉरिसन है। शायद इसमें रोम्स की 16 एडिशन में कुछ करेक्शन है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, रूल ऑफ हैसे और रूल ऑफ मैरिसन में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। देखिए इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्रॉटलिंग है, वैंसरडोला है, चॉकिंग है, इससे पूछा जाता है। तो थ्रॉटलिंग जो होता है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, किसी का हाथों से किसी का गला दबा देना, तो थ्रॉटलिंग है वो। स्मॉदरिंग को दे रखा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज फ्रॉम इनसाइड। तो स्मॉदरिंग में इनसाइड से नहीं, बाहर से नोज को माउथ को के पैसेज को पूरा ब्लॉक करके फिर उससे डेथ होती है, तो वो स्मॉदरिंग ये होता है कि बाहर से करेंगे। चोकिंग में इनसाइड होता है, कोई चीज अंदर एयरवे में फंस जाए उससे डेथ हो तो उसे बोलेंगे चोकिंग। और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है कि कोई ऐसा बाहर से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसे बोलते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। नेक्स्ट आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। गैस्ट्रिक लवाज इज कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ पॉइजनिंग विद कार्बोलिक एसिड। तो देखिए सबसे ज्यादा सबको ये लाइन रटी होती है कि गैस्ट्रिक लवाज जो है एसिड्स में कंट्राइंडिकेटेड है, कोरोसिव में कंट्राइंडिकेटेड है एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में गैस्ट्रिक लवाज हम करा सकते हैं, तो असर्शन ही गलत हो गया। उसके बाद इसका रीजन दे रहा है कार्बोलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देयर इज फियर ऑफ स्टमक परफोरेशन व्हाइल डूइंग लवाज। तो कार्बोलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, और इसलिए इसमें स्टमक परफोरेशन का खतरा नहीं होता। तो इसलिए इसके केस में गैस्ट्रिक लवाज जो है कराया जाता है। बाकी अदर जो कोरोसिव है उन केस में नहीं कराया जाता। तो इसमें दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइपर बाइट इज अटेंडेड बाय। तो देखिए 3 तरीके के स्नेक हम लोग पढ़ते हैं, वाइपर पढ़ते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, और जो ये पढ़ते हैं मसल वाले सी स्नेक। ठीक है, तो सी स्नेक क्या होता है, मायोटॉक्सिक सिम्टम कॉज करता है। ठीक है, उससे मसल पेन वगैरह होगा, क्रैम्प्स होगा। ठीक है, और जो इलेपिड्स होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, कोबरा किरैट, ये सब क्या करते हैं, न्यूरो के सिम्टम करते हैं, जिसमें टोसिस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कॉमन सिम्टम है कि टोसिस हो जाती है। उसके अलावा
जो वाइपर स्नेक होते हैं वो हिमेटोटॉक्सिक होते हैं, वैस्कुलोटॉक्सिक। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इसमें वैस्कुलर सिम्टम आते हैं। देखिए अक्सर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एपिथेलियम किससे, किस टाइप की एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपसे वजाइना का पूछा गया है, तो वजाइना की जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। उसके अलावा इसोफेगस का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बैरेट्स इसोफेगस पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन। देखिए इसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन फौरन गलत हुआ होगा। असर्शन दिया हुआ है, इन फीमेल हैविंग कार्टाजिनर सिंड्रोम देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए जो फीमेल कार्टाजिनर सिंड्रोम जिन्हें होता है उनमें प्रेगनेंसी का चांस कम होता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चांस नहीं होता। रीजन दे रहा है, इन फीमेल ऑफ कार्टाजिनर सिंड्रोम मोटिलिटी ऑफ सिलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज डिस्टॉर्टेड एंड नॉट टोटली एब्सेंट। इसमें होता क्या है कार्टाजिनर सिंड्रोम में कि जहां जहां पे भी बॉडी में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, सिलियरी मूवमेंट जहां जहां होता है वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उसमें इंपेयरमेंट आ जाता है उसके मूवमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिलिया टोटली एब्सेंट हो, थोड़ा बहुत फंक्शन करेगा। इसलिए इसमें जो पहला असर्शन दे रखा है वो भी गलत है, लेकिन रीजन जो दे रखा है कि टोटली एब्सेंट नहीं होता, डिस्टॉर्टेड होता है, तो वो सही है। इसलिए इसमें असर्शन सही है और रीजन, सॉरी इसमें असर्शन गलत है और रीजन सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मायोमेक्टमी। जब भी फाइब्राइड प्रेजेंट होता है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है मायोमेक्टमी, उसको काट के निकाल दिया जाता है, मायोम इज मसल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कंट्रा इंडिकेशन क्या है, किस केस में हम नहीं करेंगे मायोमेक्टमी। तो अगर फाइब्राइड जो है उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो पहले इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा, उसमें मायोमेक्टमी नहीं करते। और अगर परसिस्टेंट यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, मायोमा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस केस में किया जाता है। Which of the following is most common congenital anomaly due to impaired Mullerian duct fusion? देखिए इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है कि सेप्टेट यूट्रस होता है। हमें पता है कि मुलेरियन डक्ट का क्या काम होता है। मुलेरियन डक्ट जो होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स बनाती है, ठीक है। ओवरी को छोड़ के यूट्रस जो होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, अपर पार्ट ऑफ वजाइना जो होता है, ये मुलेरियन डक्ट से बनता है। तो अगर उसके फ्यूजन में कोई प्रॉब्लम होगी और फ्यूजन जो होगा उसके बाद वो फ्यूज नहीं करेगी प्रॉपर, तो क्या होगा, सेप्टेट यूट्रस बन जाएगा, यूट्रस में एक सेप्टा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपसे कब पूछा जा रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि WHO ने कितना रिकमेंड किया और आइडियली कितना होना चाहिए। तो जो आइडियल विजिट होनी चाहिए वो 12 से 15 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन WHO ने जो रिकमेंड किया है वो एटलीस्ट मिनिमम 4 विजिट होनी ही चाहिए। लेकिन इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग 3 विजिट, मिनिमम 3 विजिट होनी चाहिए। तो इंडियन सिनेरियो में 3 और WHO ने जो रिकमेंड किया है वो 4 और आइडियली होनी चाहिए 12 से 15। तो इसमें दे रखा है कि आइडियल 8 है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनाटॉमी से इस तरीके का पूछा जाता है कि आपसे स्ट्रक्चर की लेंथ पूछ ली जाती है। तो जिसमें फीमेल यूरेथ्रा तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, कई बार फीमेल यूरेथ्रा भी पूछा गया है और इसमें इसोफेगस भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फीमोरल कैनाल भी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब सब इसमें पूछा गया क्वेश्चन ही है। तो आपको पता है कि फीमेल यूरेथ्रा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसोफेगस जो है वो कितना होता है, इसोफेगस और स्टमक दोनों ही सेम लेंथ का होता है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व, एनल कैनाल और फीमोरल कैनाल। तो जो फीमोरल कैनाल की लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जो ऑप्टिक कैनाल है, ऑप्टिक कैनाल की भी उतनी होती है। तो A, C एंड D जो है वो इसका सही ऑप्शन है। इसमें इसोफेगस की अलग है 25 सेंटीमीटर और फीमोरल कैनाल की अलग है 1.5 सेंटीमीटर। A, C और D ये तीनों जो है 4 सेंटीमीटर के हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी एनाटॉमी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फीमोरल आर्टरी एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो फीमोरल आर्टरी होती है वो राइज कहां से होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से राइज होती है। तो ये स्टेटमेंट
गलत हो गया। स्टेटमेंट बी कह रहा है इट पासेस अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट इनटू द फीमोरल ट्रायंगल। तो बिल्कुल सही है ये कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट से पास करती है और फीमोरल ट्रायंगल में इंटर कर जाती है। और इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकिल तक एक लिगामेंट होता है जिसे इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। तो ये इसके नीचे से पास करती हुई फीमोरल ट्रायंगल में इंटर कर जाती है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है एनाटॉमी में। एटलस क्या है, एक्सिस क्या है, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और यस और नो मूवमेंट पूछा जाता है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है उसे बोलते हैं एटलस, जो सेकंड है उसे बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, इसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो यस मूवमेंट जो होता है, जो हाँ वाला मूवमेंट होता है, सर हिलाने वाला सीधे सीधे, वो एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में होता है। कंडाइलाइट जॉइंट है ये एटलस और ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल बोन है इसके आर्टिकुलेशन से एक जॉइंट बनता है कंडाइलाइट जॉइंट, उसको बोलते हैं, उससे होता है यस मूवमेंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इससे हाँ वाला मूवमेंट होता है जो सर हिलाया जाता है। और जो नो मूवमेंट होता है, नहीं, यानी दाएं से लेफ्ट टू राइट जो सर हिलाया जाता है, वो किसके बीच में होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में, यानी एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये होता है पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिप्सन्स फेशिया इज ए सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल सही है, सिप्सन्स फेशिया को बोलते ही है सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम ही है। उसकी बात कह रहा है इट कवर्स बेस ऑफ द लंग। तो यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट 1 में दे रखा है कि सुप्राप्लूरल है, तो बेस को नहीं कवर करता ये। ठीक है, उसके अपर पार्ट को कवर करता है, एपेक्स को कवर करता है। तो इसमें सिर्फ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से आपसे एक उसमें पूछा गया, एएमयू में भी एक सवाल ये पूछा गया है पल्स प्रेशर का। उसमें शायद पल्स प्रेशर की जगह नब्ज दे दिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं? जो बीपी होता है, तो सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को घटा देते हैं, यानी 120 से 80 को घटाएंगे 40 mmHg आ जाएगा। तो ये पल्स प्रेशर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इन न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेटेड एट। तो एक्शन पोटेंशियल जो स्टार्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एक्सॉन हिलॉक से। एक्सॉन हिलॉक होता क्या है? जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की और जो एक्सॉन होता है उसको कनेक्ट करता है। ये कोनिकल एक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, सेल बॉडी को और एक्सॉन को, उसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। और यहीं से एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिस सेंटर सिचुएटेड इन। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो होता है वो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, ये पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूमोसाइट्स होते हैं, कौन से न्यूमोसाइट्स होते हैं सरफेक्टेंट सिक्रीट करते हैं? हमें पता है सरफेक्टेंट लंग्स में मौजूद होता है जो कि एल्वियोलाई में को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो उससे ये पूछा जा रहा है कि किससे ये सिक्रीट होता है? तो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होते हैं उससे सिक्रीट होता है सरफेक्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, अपेंडिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अपेंडिक्स से पूछा जाता है उसके जितने साइन है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अपेंडिक्स की पोजीशन पूछी जाती है। तो इसमें जो है मैकबर्नीज पॉइंट, रोविजिंग साइन, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। उसके अलावा पोजीशन से पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमन पोजीशन हमें पता है कि रेट्रोसिकल है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है लीस्ट कॉमन। तो लीस्ट कॉमन में लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि पोस्ट इलियल लीस्ट कॉमन है या प्री इलियल कॉमन है। लीस्ट है सबसे ज्यादा, तो जो सबसे कम है वो है पोस्ट इलियल। पोस्ट इलियल के बाद प्री इलियल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में दे देता है पैरा इलियल। अगर पैरा इलियल दे दिया तो यानी कि दोनों इसको इंक्लूड कर लिया, पोस्ट और प्री दोनों को, तब आप पैरा इलियल लगाएंगे। लेकिन अगर लीस्ट कॉमन पोजीशन पूछा है और ऑप्शन में पोस्ट भी है, पोस्ट इलियल भी है और प्री इलियल भी है, तो आप करेक्ट आंसर जो लगाएंगे वो पोस्ट इलियल लगाएंगे।
पोस्ट इलियल 0.4% होता है और प्री इलियल जो है 1% होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हेन मैनुअल प्रेशर ओवर कार्पल टनल प्रोवोक्स पैरेस्थीसिया इज कॉल्ड। देखिए नर्व की इंजरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिस्ट ड्रॉप किससे होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, एप थंब डिफॉर्मिटी किससे होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर क्लॉ हैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। एक इसका नेमोनिक भी है डॉक्टर क्यूमा। तो डीआर यानी रिस्ट ड्रॉप जो होता है वो रेडियल नर्व से होता है। उसके अलावा जो क्लॉ है वो अल्नर नर्व से होगा। उसके बाद जो मीडियन नर्व है उससे होता है एप थंब डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कार्पल टनल पे प्रेशर दिया जाए, मैनुअल प्रेशर दिया जाए, तो इससे और पैरेस्थीसिया अगर डेवलप कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये डरकन टेस्ट होता है। उसके अलावा इसमें दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, टिनेल साइन और फैलन साइन। ये दोनों ही कार्पल टनल के लिए ही चेक किया जाता है। कार्पल टनल के लिए कार्पल टनल जो होता है मीडियन नर्व से होता है। टिनेल साइन क्या होता है, जब हम कार्पल टनल के ऊपर अगर हम टैप करें, उससे अगर पेन अराइज हो रहा है तो उसे बोलते हैं टिनेल साइन। और फैलन साइन क्या होता है, फैलन साइन बोलते हैं रिवर्स प्रेयर साइन, यानी कि जैसे हाथ जोड़ा जाता है, अगर उसी को फ्लेक्स करके नीचे की तरफ करें, रिवर्स प्रेयर साइन, तो वो होता है फैलन साइन। ये भी कार्पल टनल में ही किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नेक्रोसिस से क्वेश्चन कि फैट नेक्रोसिस इज सीन इन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग ऑप्शन देके, कभी ब्रेस्ट ऑप्शन में दिया है, कभी पैनक्रियाटाइटिस दिया है। तो जो फैट नेक्रोसिस होती है वो पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलती है। उसके अलावा ब्रेस्ट में जहां पे फैट ज्यादा प्रेजेंट होगा वहां पे फैट नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। हार्ट और स्प्लीन में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ट्यूबरकुलर लेजन अगर कोई होता है तो उसमें कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है, तो हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें क्या पूछा गया है, मैक्रोफेजेस पूछे गए हैं। मैक्रोफेजेस से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ब्रेन का माइक्रोग्लिया हो गया, बोन का ऑस्टियोक्लास्ट है, लंग्स में हिस्टियोसाइट दे रखा है, लंग्स में जो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस होती है डस्ट सेल जिसे बोलते हैं, लीवर में कफ्फर सेल्स होती हैं। तो इसमें लंग्स का हिस्टियोसाइट जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए इसमें पूछा है शेड्यूल टी डील्स विथ, हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हुआ हो, तो ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से पूछा गया है। तो इसमें अलग अलग शेड्यूल बनाए गए, हर शेड्यूल में ये किया गया कि किससे क्या चीज डील करेगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग थी आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की, वो शेड्यूल टी में आती है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सारे नहीं देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट ही है वही देखना है। अब देखिए इसमें ईयर से मैच कराना है। जो नेशनल प्रोग्राम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो एमओ वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें तो इम्पोर्टेंट, उसमें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी एआईपीजीटी में भी अक्सर पूछा गया है। तो पूछा गया है फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला केस कब देखने को मिला, 1986 में। फिर पूछा गया है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो 1953 में। फिर पूछा जा रहा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम 1962 में। फिर उसके बाद नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये काफी नया है, 2003-4 में स्टार्ट किया गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज में, तो आप ये भी देख लीजिएगा। देखिए ये भी पीएसएम से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है, कौन सी एलिमिनेट हो गई है, कौन सी कंट्रोल में है। तो कंट्रोल उसे बोलते हैं जो अभी कंट्रोल में है, बहुत तेजी से उसका स्प्रेड नहीं हो रहा है। एलिमिनेट मतलब कि अब वो डिजीज हो नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसका जो पैथोजन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, वो हो भी सकती है। इरेडिकेट यानी एकदम कंप्लीटली गायब हो चुकी है, इसका जो पैथोजन है वो भी अब मौजूद नहीं है। और अंडर ग्लोबल एलिमिनेशन कैंपेन, जिसको बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है एलिमिनेट करने की। तो इसमें ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, लेप्रोसी।
तो देखिए कंट्रोल कौन सी हुई है, मलेरिया। ऐसा तो है नहीं कि मलेरिया बिल्कुल होता नहीं है, अभी कंट्रोल में है, वो इतना नहीं होता लेकिन फिर भी होता है। इलिमिनेट पूछा गया है, तो लेप्रोसी जो है वो इलिमिनेट हो चुका है। इरेडिकेट जो है, सिर्फ अभी तक एक डिजीज ऐसी है जो कंप्लीटली इरेडिकेटेड मानी गई है, स्मॉल पॉक्स। फिर कह रहा है अंडर ग्लोबल एलिमिनेशन कैंपेन, तो पोलियो, ठीक है, लेकिन अभी भी पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जा रहे हैं इसीलिए कि बिल्कुल इसको इरेडिकेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इज कॉल्ड, अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया के टॉक्सिन मौजूद है तो उसे क्या बोलेंगे, टॉक्सीमिया। मिया ईमिया मतलब ब्लड हो गया, और टॉक्सीमिया टॉक्सिन से है। अगर बैक्टीरिया पूछा गया होता कि सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, तो होता बैक्टीरीमिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सबसे ज्यादा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो अपर ड्यूडेनम में होता है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी इसके अलग अलग कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं, कभी इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो अक्सर तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको PQLI दे दिया गया और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए गए कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो PQLI में क्या आता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज 1 ईयर की एज पे कितनी थी, एडल्ट लिटरेसी। तो PQLI उससे देखते हैं, PQLI कितना होता है इंडिया का, 65 है, और इसकी रेंज कितने से कितने तक होती है, 0 से 100 तक होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है HDI। HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें लॉन्गेविटी देखते हैं, इनकम देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, ठीक है। HDI जो है सबसे हाईएस्ट कहाँ का है, केरला का है, और HDI इंडिया का कितना है, 0.624, ठीक है। फिर उसके बाद GHI आपसे पूछा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या होता है, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कितनी है उसका प्रोपोर्शन देखते हैं, अंडर वेट कितने हैं, और अंडर 5 मोर्टिलिटी, यानी कि 5 साल से कम की उम्र में बच्चे कितने बच्चे मर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, ये आपको पूरा अच्छे से, आपके होम्स में एक चार्ट दे रखा है इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ, वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें है PQLI, तो PQLI अभी मैंने बताया कि 0 से 100 तक होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है HDI, ये जो होता है इसकी रेंज जो होती है ये 0 से 1 होती है। उसके बाद HPI 2, ये जो है इसकी रेंज, ये जो होता है डेवलप्ड कंट्री के लिए देखा जाता है। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ये जो होता है ये अंडर नरिश्ड, अभी मैंने बताया कि इसमें देखते हैं अंडर नरिश्ड, अंडर वेट और अंडर 5 मोर्टिलिटी, तो ये अंडर नरिश्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इंक्यूबेशन पीरियड से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, अलग अलग डिजीज का इसमें पूछ रहा है। 6 आवर इंक्यूबेशन पीरियड, 2 डेज, 10 to 14 डेज और 10 ईयर्स। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैचिंग का, कि आपको जो सबसे कंफर्म पता हो आप उसे मिला ले। तो इसमें 6 आवर्स का जो है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, हमें पता है फूड पॉइजनिंग बहुत ही कम टाइम में हो जाती है, तो 6 आवर हो जाएगा। 2 डेज किसका होगा, 2 डेज होगा कोलरा का। 10 to 14 डेज जो होता है वो टाइफाइड का होता है, और एलिफेंटियासिस का 10 ईयर्स। अब इसमें देखिए सीधा सीधा आपको डेफिनेशन से मिलान कर देना है। तो डिसइंफेक्टेंट हम किसे बोलते हैं, जिसमें सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं सिर्फ उन्हें किल किया जाता है, तो दैट इज डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए, तो वो एंटीसेप्टिक। डिसइंफेस्टेशन, इन्फेस्टेशन यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के ऊपर, बॉडी पर रहते हैं और उससे वहां पे रह के वो अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फेस्टेशन। तो ये किलिंग लाइस ऑन बॉडी सरफेस, डिसइंफेस्टेशन, ठीक है। फिर है स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, सारे चेकिंग ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स, स्पोर्स को भी इसमें किल कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है इंटरससेप्शन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एज। तो इंटरससेप्शन क्या होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे के अंदर इंटर कर जाता है, उसे बोलते हैं इंटरससेप्शन। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उन बच्चों में जो मिल्क फीडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उन बच्चों में देखने को मिलता है। तो 5 to 6 मंथ जो है इंटरससेप्शन की मोस्ट कॉमन एज है। देखिए क्रैडल कैप इज सीन इन। क्रैडल उसे बोलते हैं जो वो झूला होता है जिसमें बच्चे लेटते हैं। तो क्रैडल कैप जो यानी कि एक बच्चे के सर पे कैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होता है सिबोरिक डर्माटाइटिस में। जब बच्चे को सिबोरिक डर्माटाइटिस प्रेजेंट होता है तो कैप जैसा पूरा अपीयरेंस दिखाई देता है। देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, टीनिया क्रूरिस कॉजेज धोबीज, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। इन चिल्ड्रन द एस्टिमेशन ऑफ बर्न सरफेस इज डन बाय। देखिए इससे भी बर्न सरफेस से भी पार्कलैंड फार्मूला, वेलेस रूल, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछा गया है कि वेलेस रूल इज यूज्ड टू एस्टिमेट। तो आपको ये याद रखना है कि जो वेलेस रूल होता है जिसे बोलते हैं हम रूल ऑफ 9, ये सरफेस एरिया एस्टिमेट करता है, बर्न का एक्सटेंट बताता है, उसका सरफेस एरिया एस्टिमेट करता है। और जो ये है लुंड एंड ब्रोडर चार्ट, ये बच्चों में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो सरफेस एरिया होता है वो एडल्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, इसलिए लुंड एंड ब्रोडर चार्ट इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद जो एक और ऑप्शन है पार्कलैंड फार्मूला। तो पार्कलैंड फार्मूला से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, इससे फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेलेस रूल और लुंड एंड ब्रोडर जो है उससे हम एस्टिमेट करते हैं बर्न सरफेस, और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करते हैं पार्कलैंड फार्मूला से। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यूनिवर्सल एंटीडोट भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो है वो तब दिया जाता है जब हमें किस टाइप की पॉइजनिंग हुई है, उसका नेचर कैसा है वो हमें पता ना हो। तो ये चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका टॉक्सिकोलॉजी से है, कैल्सीमिया। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड से हाइपोकैल्सीमिया होता है, ये एसेशन दिया हुआ है। उसके बाद रीजन पूछा जा रहा है, इट हैपेंस बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड बाइंड्स टू कैल्शियम एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्जेलेट सॉल्ट। एक मिनट, ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड से हाइपोकैल्सीमिया होता है, एसेशन दिया है, फिर रीजन दे रहा है, इट हैपेंस बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड बाइंड्स टू कैल्शियम एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्जेलेट सॉल्ट। कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो कैल्शियम से बाइंड कर जाता